سب سے ذکر سنا ہے، آئیے اس سے بہتر کون میلاد بیان کر سکتا ہے کہ جس کے شکم میں ہمارے آقا 9 ماہ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کی امی جان خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، تو دنیا کی مائیں جب بچہ حمل میں ہوتا تو ہر آنے والا دن ایک نئی مشکل لے کے آتا ہے، نئی پریشانی لے کے آتا ہے۔ جیسے جیسے ولادت کے دن قریب آتے ہیں، ماؤں کی تکلیفیں بڑھتی ہیں، درد بڑھتے ہیں، بے چینی بڑھ جاتی ہے، نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے، نیند رات کی اڑ جاتی ہے۔ 9 مہینے ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے ایک ماں جانتی ہے۔ بالکل صحیح ہے نا؟ دنیا کی مائیں اس قدر تکلیفیں اٹھاتی ہیں، مگر حضور کی امی جان حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے شکم میں جب یہ پیارا آیا تو یہ ایسا پیارا آیا کہ جیسے جیسے دن گزرتے تھے مجھے نئی راحت اور خوشی ملتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی ماؤں کو تکلیف بڑھتی تھی، مگر ہمارے آقا ماں کے شکم میں آئے تو ماں کو راحت ملا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کی یہ شان ہے کہ کوئی ایسا مہینہ نہ گزرتا کہ نبی اور رسولوں کی طرف سے مبارکباد کے پیغام، ہر مہینہ آنے والا مبارکبادی کے لے کے آیا کرتا تھا۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس موجود تھے، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب متولی تھے، کہاں کے؟ خدا کے گھر خانہ کعبہ کے سردار تھے۔ تو جو بھی مسافر آتے، مہمان آتے حرم میں تو آپ ان کا استقبال کرتے۔ وہی خانہ کعبہ کے پاس موجود تھے، کچھ قریش آئے اور آئے، کہا اے عبد المطلب کیا نیا ضابطہ اور نیا اصول آ گیا ہے؟ پرانے ضابطے ختم ہو گئے، پرانے اصول ختم ہو گئے؟ پوچھا کیا مطلب؟ کہا کہ ہمارے عرب میں کیا یہ طریقہ رائج نہیں ہے کہ جب کسی کا شوہر ختم ہو جاتا ہے تو عورت سوگ کرتی ہے، عورت سوگ مناتی ہے؟ عرب میں جاہلوں میں یہ طریقہ چلا رہا تھا کہ جس کا شوہر ختم ہو جائے تو وہ عورت عدت میں اس طرح بیٹھتی تھی کہ پورا سال نہ وہ کوئی اچھا کپڑا پہنتی تھی، نہ وہ خوشبو لگا سکتی تھی، نہ باہر گھومنے پھرنے جا سکتی تھی، صرف کام سے جا سکتی تھی۔ ایک طریقے سے سال بھر کے لیے قید کر دیا جاتا اس عورت کو۔ عدت گزارنا چاہیے، عدت اسلام میں بھی ہے، مگر عدت اسلام میں 4 ماہ 10 دن کی ہے، مگر عرب میں سال بھر یہ عدت چلاتے تھے۔ نہ نیا لباس پہن سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ سر میں تیل لگا سکتے ہیں، نہ کنگھی کر سکتے ہیں، نہ سنگھار کر سکتے ہیں۔ یہ تمام قیدیں تھیں اس دور جاہلیت میں۔ اہل قریش نے کہا اے عبد المطلب تم سردار مکہ ہو، کیا یہ رواج ہمارے وہاں کا ختم ہو گیا کہ عدت عورتیں گزاریں گی نہیں، خوشبو لگا کے گھومیں گی؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ کون کہتا ہے، رواج تو یہی چلا رہا ہے، ہر عورت عدت گزارتی ہے۔ تو کہا عدت گزارتی ہے تو تمہاری بہو آمنہ عدت کیوں نہیں گزار رہی؟ تمہاری بہو آمنہ پھر عدت کیوں نہیں گزار رہی؟ ابھی تمہارے بیٹے عبداللہ کو انتقال ہوئے سال بھر بھی نہیں ہوا اور تمہاری بہو خوشبو ایسی لگا کے نکلتی ہے کہ عرب کے امیر اور رئیس بھی خوشبو نہیں لگا سکتے، ایسی خوشبوؤں میں سما کے نکلتی۔ حضرت عبد المطلب نے سنا تو آپ کی بھی نظریں جھک گئی اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جلال میں آپ گھر میں تشریف لائے، آپ کی بیوی حضور کی دادی جان آپ موجود تھی، دروازے پر دستک دی، آپ کی دادی نے کھولا، حضرت فاطمہ نے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی بھی فاطمہ ہے اور بیٹی بھی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا تو سمجھ گئی کوئی فکر کی بات ہے۔ کہا اے عبد المطلب کیا بات ہے، کون سی بات کی فکر ہے کہ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے؟ کہا اے فاطمہ یہ بتاؤ کہ آج ہماری آمنہ جو ابھی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے وہ عدت کیوں نہیں گزار رہی؟ کہا یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ اہل قریش میرے پاس شکایت لے کے آئے، قریش کی عورتیں شکایت کر رہی ہیں کہ آمنہ عدت میں نہیں ہے، وہ تو خوشبو لگا کے گھوم رہی ہے،
क्या खाली इज्जत खाली हम ही लोगों के लिए? तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं लोग कि तुम अपनी बहू को समझाओ कि वो ऐसा क्यों कर रही। हजरत फातिमा ने सुना तो कहा, अब्दुल मुत्तलिब, ये सवाल आमना से मैं नहीं कर सकती, ये सवाल आप खुद उससे करें। कहा, देखो मैं मर्द हूँ, वो औरत है, ठीक है, बहू है, बेटी है, मगर ये सवाल तुमको करना मुनासिब है, इसलिए तुम उससे सवाल करो। कहा, अब्दुल मुत्तलिब, सवाल तो मैं कर लेती, ये जो आज आपके पास एतराज आया है मेरे पास पहले से आ चुका है। कुरैश की औरतों ने पहले से सवाल किया है और मैंने यही सवाल फातिमा आमना से किया। क्या है आमना, तुम इद्दत में क्यों नहीं गुजार रही, क्यों खुशबू लगा के निकल रही हो? मैंने इस सवाल का दिल में इरादा किया और अपनी बहू आमना के पास गई ताकि सवाल उससे करूं। जैसे ही मैंने सिर्फ उसका नाम पुकारा है, आमना कहा है, आमना की पेशानी से एक नूर निकला जो मेरी पेशानी पे टकराया और मैं होश खो बैठी, बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मेरे अंदर ताकत नहीं कि आमना से सवाल करूं, इसलिए आप ही सवाल कर लें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, कहा, ठीक है, सवाल तो तुम्हारा जवाब कहना तो दुरुस्त है, मगर फिर भी मेरा सवाल करना मुनासिब नहीं, लिहाजा चलो तुम भी मेरे साथ चलो और हम दोनों मिलकर चलते हैं और सवाल करते हैं। अब दोनों हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हुजूर की दादी जान हजरत फातिमा दोनों तशरीफ लाए। हजरत फातिमा ने हजरत आमना के दरवाजे पे पहुंचकर कहा, आमना, तुम्हारे अब्बा जान तुम्हारे ससुर आ रहे हैं। जैसे ही हजरत आमना ने सुना तो बिस्तर को छोड़कर दीवार के किनारे सर झुका के अदब से खड़ी हो गई। अब्बा जान का इस्तकबाल किया, सलाम किया, जवाब दिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का देखिए कितना प्यारा अंदाज है, बेटी से सवाल तो कर रहे हैं मगर सवाल बेटी से नहीं, अदब देखिए हमारे आका के घर वालों का अदब। सवाल बेटी से बहू से करना है मगर सवाल अपनी बीवी फातिमा से कर रहे हैं कि फातिमा, अपनी बहू आमना से पूछो कि इद्दत क्या ये नहीं गुजार सकती? अभी क्या इसके दिल से शौहर की मोहब्बत ख़त्म हो गई कि ये खुशबू लगा के बाहर घूम रही है, इद्दत गुजार नहीं रही? जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये कहा तो हजरत आमना के मुंह से चीख निकल गई। चीख निकली, कहा, अब्बा जान, आप क्या कह रहे हैं? क्या मुझे अपने शौहर का गम नहीं? जिस दिन से आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है उस दिन से मैंने पेट भर के खाना भी नहीं खाया। गम इस कदर है कि रात भर बिस्तर में करवट बदलती हूँ, उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती और आप मुझसे मोहब्बत की बात करते हैं। कहा, बेटा, अगर अपने शौहर की इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है, तो फिर ये इद्दत क्यों नहीं गुजार रही, क्यों खुशबू लगा के जा रही हूँ कि कुरैश वाले तुमसे एतराज कर रहे? जब हजरत आमना ने सुना तो कहा, अब्बा जान, मैं इसका जवाब क्या दूं, अभी आप ठहरे, मैं भी आती हूँ। अंदर तशरीफ ले गई। अंदर से जिस तकिए पे आप सर रख के सोती थी उस तकिए को लेके आई। कहा, अब्बा जान, इस तकिए को सूंघिए। अब तकिए को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा तो उस तकिए में मुश्को अंबर से ज्यादा महक और खुशबू आ रही। कहा, बेटी, इस तकिए में खुशबू कहाँ से आई? कहा, अब्बा जान, आप मुझसे कहते हैं कि मैंने खुशबू लगाई, जिस दिन से ये प्यारा मेरे पेट में आया है मैंने खुशबू को छुआ ही नहीं मगर मेरे कपड़े महकते हैं मुझको, जिस्म महकता है मुझको अंबर की तरह। दुनिया का कोई खुशबू मैंने नहीं लगाई, ये तो जब से प्यारा मेरे शिकम में आया है तब से ये कैफियतें बदल रही हैं। मैंने आज तक किसी से जिक्र नहीं किया मगर आज जब एतराज हुआ है तो ये राज आमना आप पर खोल रही है। कहा, बेटा, ये ठीक है कि तकिए में खुशबू आई। कहा, अभी अब्बा जान रुके, अभी कुछ और दिखाना है। कहा, बेटा, अब क्या रह गया? अंदर गई तो जिस दुपट्टे को अपने सर पे डालती थी उस दुपट्टे को लेके आई। कहा, अब्बा जान, इस कपड़े को भी सूंघ के देखिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा तो उसमें ऐसी खुशबुएं बसी हुई थी कि उससे पहले कभी आपने वैसी खुशबू ही नहीं। फरमाया, बेटी, इस कपड़े में खुशबू कहाँ से आई? तो कहा, अब्बा जान, मेरी पेशानी पे पसीना भरा हुआ था,
पसीना मेरी पेशानी पे था, मैं इस दुपट्टे को कपड़े को हाथ में लिए थी, मैंने इस कपड़े से अपनी पेशानी का पसीना पोंछा। जिस दिन से पसीना पोंछा है उस दिन से ये कपड़ा महक रहा है। महीनों गुजर गए, कपड़े की खुशबू नहीं जा रही। हद तो ये है कि मैं इस कपड़े को एक बार नहीं कई बार पानी से धो चुकी हूँ, मगर इस कपड़े की खुशबू नहीं जाती। आलम ये है अब्बा जान, जिस पानी से मैंने इस कपड़े को धो दिया वो पानी भी खुशबूदार हो। ये इस प्यारे की आमद का असर है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो कहा, बेटा आमना ये मुबारक हो, मैंने कुछ दिन पहले खुदा के घर पे दुआ की थी कि अब्दुल्ला की निशानी जो तेरे शिकम पर है, परवरदिगार उस बच्चे को साले बना दे, नेक बना दे। शायद मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, रब की तरफ से कोई कीमती तोहफा है कि जो तेरे पेट में आया है तो दुनिया में आने से पहले ये आसार जाहिर हो रहे हैं। अभी ये बात आप कर ही रहे थे, आपकी दादी जान हजरत फातिमा कमरे के अंदर गई और दीवार के एक तरफ से मिट्टी को निकाला और मिट्टी को लेकर आई। कहा अब्दुल मुत्तलिब इस मिट्टी को सूंघ के देखिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मिट्टी को सूंघा तो वो भी महक और खुशबुओं में बसी हुई थी। कहा फातिमा इस दीवार की मिट्टी में खुशबू कहाँ से आई? कहा अब्दुल मुत्तलिब मैंने कल ही देखा कि आमना थकी हुई थी, थकावट में इसने हाथ दीवार पर रख दिया था। जहां हाथ रखा था मुझे यकीन था कि आमना का हाथ इस जगह रखा है, इस जगह की मिट्टी भी मुझको अंबर से ज्यादा महकदार होगी, इसलिए मैं उस जगह की मिट्टी ले आई जहां आमना ने हाथ रखा था। हज़रत आमना के जिस्म का ये हाल हो गया कि हमारे आका माँ के पेट में क्या आए कि आपका पसीना मुझको महकदार हो गया, आपके कपड़े भी मुअत्तर हो गए। हद तो ये है जहाँ हाथ रखती थी वो जगह भी मुअत्तर हो गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अभी ये सुन ही रहे थे। कहा बेटा इस राज को दिल में रखना, अल्लाह ने बहुत कीमती तोहफा अता किया है। कहा अब्बा जान राज तो अभी तक दिल में था, अभी एक और राज बाकी है। कहा बेटा वो राज क्या है? कहा अब्बा जान जब आप यहाँ से सुबह के वक्त खाने काबा में जाते हैं, मुसाफिर आते हैं, मेहमान आते हैं, आप उनको खिलाते और पिलाते हैं। कभी पानी नहीं होता तो घर से पानी नहीं ले जाते ताकि मेहमानों को पानी पिला सके। अब मैं ऐसे आलम में मेरे पेट पे ये बच्चा है, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती। जब पानी की तलाश होती है और कभी ऐसा होता है कि घर में पानी भी खत्म हो जाता है, आप घर का पानी ले जाते हैं, घर में पानी नहीं होता। जब मुझे प्यास ज़्यादा होती है, पानी की प्यास शिद्दत इख्तियार करती है, तो मैंने एक दिन अपना बर्तन उठाया ताकि करीब में जो कुआं है वहाँ से पानी ले आए। पानी लाने के लिए कुएं की तरफ गई। अब हिम्मत न थी कि कुएं पर रस्सी डालकर डोल डालेंगे तो आमना उठाएगी कैसे, ताकत बदन में नहीं है, कैसे मैं डोल डालूं, कैसे ही मैं पानी निकालूं। मगर इसी टेंशन में प्यास की शिद्दत मुझे कुएं तक ले गई। अब मैं कुएं की तरफ गई तो मैं जब कुएं के करीब पहुंची तो कुआं तो पानी नीचे गहराई में था। मैं जब कुएं के करीब पहुंची तो अब्बा जान जब मैंने सोचा कि पानी कितना गहरा है, मैं पानी निकाल सकती हूँ कि नहीं, मैंने कुएं की तरफ एक बार झाँका। सुभान अल्लाह, एक बार कहती है मैंने कुएं की तरफ झाँका। अभी मैंने कुएं में देखा था, पानी की नजर भी शायद मुझ पर पड़ गई। अब वो पानी को ऐसी मौजें आई कि वो पानी जमीन की तह से उठता हुआ ऊपर तक आ गया, वहां तक के ऊपर लबरेज हो गया। मैंने बगैर रस्सी के सिर्फ डोल डालकर पानी निकाल लिया। की औरतों ने देखा तो कहा आमना ये पानी तुझको देकर आया है, ये पानी तुझको देख के आया है। हम लोग कमजोर हैं, औरत जात हैं, पानी निकालना भारी पड़ता है। ऐ आमना जरा ठहर जा, हम भी पानी कर ले। अगर तू चली गई तो पानी भी चला जाएगा, इसलिए ठहर जा। अब मैं वहां खड़ी रही, सारी औरतों और लड़कियों ने पानी भर लिया।
जब सबने भर लिया तो मैं भी चली तो पानी नीचे उतर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आलम ये है, अहले कुरैश हमारे पास आके कहती है, ऐ आमना पानी भरना है तो कुएं को एक बार चेहरा दिखा दो। तुम्हारा चेहरा पानी देखता है तो पानी खुद बहुत ऊपर चला आता है। अब क्यों ना आए जिस शिकम में नूर मोहम्मदी चमक, उसके नूर की बरकतें हैं कि पानी खुद मौजे मारता हुआ ऊपर चला आता है। अब्बा जान खाली इतना ही नहीं, जब आप कुएं की तरफ जाते हैं रास्ता बड़ा खराब है, वहाँ पर पत्थर भी पड़े हैं, टुकड़े पड़े हुए हैं, पैरों को जख्मी कर देते हैं। कहा हाँ बेटा वहाँ तो रास्ता बहुत खराब है। कहा अब्बा जान मगर जिस दिन से ये प्यारा बच्चा मेरे शिकम में आया है, मैं जब भी कुएं में जाती हूँ इन्हीं पथरीली जमीन से गुजरती हूँ, चट्टानों से गुजरती हूँ, मगर अब्बा जान मेरे पैर जख्मी नहीं होते। पूछा बेटा तेरे पैर जख्मी क्यों नहीं होते? कहा अब्बा जान जब मैं पत्थरों में पैर रखती हूँ तो रेशम की तरह वो मुलायम होता है, पत्थर भी रेशम बन जाते हैं और मेरे लिए राहत का सबब बन जाते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। देखो ये हमारे आका की बेमिसाली है कि जब माँ के पेट में आ जाए तो ऐसे आसार तो दुनिया में खुदा जाहिर करता है कि माँ की पेशानी से निकलने वाला पसीना भी मुझको अंबर से ज्यादा महकदार हो रहा है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि ये बच्चा ऐसा मुबारक बच्चा था, हर दिन नई नई बशारतें लेकर मेरे पास आ रहा था। यही हाल था, 5 महीने का अरसा गुजर गया, 5 महीने का अरसा गुजर गया और धीरे धीरे वक्त आते रहे, लोग बशारतें लेके आते रहे। कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो रहा है, कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारकबादियाँ मिल रही हैं, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, हूरों का नुज़ूल हो रहा है, यहाँ तक कि 9 माह आ गए। 9 माह हो गए, हमारे आका की विलादत की वो तारीख आ गई। हजरत आमना फरमाती हैं कि विलादत के आसार रूनुमा हो रहे थे, दर्द जाहिर हुए, तो मेरे ख्याल आया अपने शौहर अब्दुल्ला का, अब्बा जान का, हुजूर के अब्बा जान का। फरमाती है कि जैसे ही अब्दुल्ला का ख्याल आया उस वक्त मेरे पास कोई भी न था, मैं तन्हा थी। मुझे ख्याल आया कि ऐसे वक्त में बच्चे के आसार जाहिर हो रहे हैं और काश आज मेरे पास अब्दुल्ला होते तो मुझे कुछ उनको देख के राहत मिलती, वो कुछ मेरा सहारा बनते। आज मैं अकेले हूँ, मेरे पास कोई नहीं। जैसे ही अब्दुल्ला का ख्याल आया तो आंखों में आंसू आ गए। एक पहला कतरा मेरी आंखों में आंसू का आया, अभी कतरा आंख से गिरा भी नहीं था कि सामने की दीवार फटी और 3 बड़ी बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील औरतें दाखिल हुई। ऐसी लंबी कि जैसे खजूर का पेड़ हो, उससे पहले मैंने इतनी लंबी औरतों को नहीं देखा। मैंने देखा तो मैं घबरा गई। कहा आप लोग कौन हैं? तो जो सबसे आगे थी कहा आमना परेशान न हो, मैं हजरत आदम की बीवी हजरत हव्वा, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो रहा है, आप मुबारकबादी पेश कर रही हैं। दूसरी ने कहा आमना तुझे मुबारक हो, मैं कोई और नहीं, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम, उनको मुबारक हो। वो पैगंबर आखिर ज़मां जिसकी आमद का इंतजार सारी कायनात कर रही थी, खुदा ने उस तेरे शिकम में अता फरमाया है, तुझको मुबारक हो पैगंबर आखिर ज़मां। आपने अभी तीसरी की तरफ देखा तो वो खुद पुकार उठी, ऐ आमना मुबारक हो, मैं कोई और नहीं हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत हाजरा हूँ। ये अल्लाह के नबियों की बीवियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश करने के लिए हाजिर हो रही थी। आप फरमाती हैं अभी मेरी मुलाकात हुई कि सरहाने की तरफ एक हसीनो जमील खूबसूरत औरत जाहिर हुई, जिसके हुस्न का आलम ये था कि वो क्या आई कि पूरा कमरा रोशन हो गया, चेहरा रोशन था। मैंने सरहाने की तरफ देखा तो उस खूबसूरत औरत पे नजर पड़ी। मैंने पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आई है? चाहे आमना मुबारक हो, खुदा ने मुझे जन्नत की का सरदार बनाया है, मैं सरदार जन्नत हूँ, तेरी खिदमत के लिए हाजिर हुई। एक प्याला दिया जिसमें शरबत था, कहा आमना इस मशरूब को पी लो, इस शरबत को पी लो। हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने जब उस शरबत को पिया तो वो शरबत
शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। ऐसा शीरी, ऐसा खुशबूदार वो शरबत कि मैंने उससे पहले कभी ऐसा शरबत ही नहीं किया। उस शरबत को पीना था कि आसारे विलादत जाहिर होने लगे। दुनिया की माएँ कहती हैं जब बच्चा पैदा होता है तो बदबू से कमरा भरता है, मगर हमारे आका जिस वक्त विलादत हो रही है एक नूर जाहिर हुआ, पूरा कमरा मुश्को अंबर की तरह। हमारे आका दुनिया में तशरीफ आए तो इस शान से आए कि आपका सर पेशानी सजदे पर है। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं। हमारे आका की ये शान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को आपने गोद में लिया। हज़रत आमना फरमाती हैं कि दुनिया के बच्चे होते हैं तो उनका आलम ये होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो दाइयाँ माँ से बच्चे को जुदा करती हैं, क्योंकि पेट में माँ का और बच्चे का कनेक्शन एक होता है, नाफ से कनेक्शन एक होता है, माँ के जरिए अल्लाह रिज़्क़ पहुंचाता है। मगर हज़रत आमना फरमाती हैं कि ये ऐसा प्यारा दुनिया में आया कि ना उसके हुस्न जमाल का कोई मिसाल थी। आलम तो ये था कि दुनिया के बच्चे आते हैं तो माओं से जुड़ कर आते हैं, मगर ये प्यारा मोहम्मद क्या आया कि पहले से इसकी नाप कटी हुई, दुनिया में किसी दाई का मोहताज ही नहीं, पहले से नाप कटी हुई थी, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, सर में तेल सजा हुआ था, जुल्फे महक रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये पैदा नहीं हुआ, सजा और सवार कर भेजा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की शान है। आप फरमाती हैं मैं अपने लाल को अभी देख ही रही थी कि ऐसा प्यारा लाल है। अचानक एक बादल का टुकड़ा जाहिर हुआ, बादल आया और उसने उस जगह को घेर लिया, पूरी आलम नूर ही नूर से मुनव्वर हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज आई कि इसको मशरिक की सैर कराई जाए, और जैसे ही आवाज आई कुछ देर के बाद बादल का टुकड़ा चला गया। मैंने गोद में देखा तो मेरा बच्चा मेरी नजरों से गायब था। मैं परेशान हो गई कि वो प्यारा बच्चा कहाँ चला गया। कुछ देर में घबरा रही थी कि फिर वही बादल का टुकड़ा आया और वो वापस लाया, तो फिर मैंने गोद में मेरा प्यारा मोहम्मद मौजूद था। सुभान अल्लाह। आवाज आई, किसी ने कहा कि इसको मशरिक व मगरिब की सैर करा दी। कहा हाँ, मशरिक की भी सैर करा दी, मगरिब की भी सैर करा दी, शुमाल और जुनूब की भी सैर करा दी। कहा जमीनो आसमान की, कहा हाँ जमीनो आसमान की भी सैर करा दी, सातों आसमान सातों तबक की इसको सैर करा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे आका की शान है कि पैदा हुए तो मशरिक व मगरिब की सैर करके अल्लाह ने ये दुनिया को दिखाया कि देखो मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तो मेरा महबूब अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान वो रब्बुल आलमीन है। तो वो अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल्लिल आलमीन बनाया, ये दुनिया को जाहिर कर दिया कि देखो रहमतुल्लिल आलमीन की शान कैसी होती है। पैदा हुए तो मशरिक और मगरिब को भी मुनव्वर कर दिया, शुमाल और जुनूब को भी कर दिया, जमीन के तबक और आसमान के सातों आसमान की सैर करा दी गई। इसलिए क्योंकि खुदा ने जितने आलम बनाए थे हर आलम के लिए अपने महबूब को रहमत बनाया था। इसलिए रहमतुल्लिल आलमीन हो तुम, एक आलम के लिए रहमत होते तो काफी था, मगर खुदा ने एक आलम के लिए नहीं भेजा, आलमीन के लिए रहमत बनाया, इसलिए आलमीन की सैर कराई जा रही है। देखो तुम इस आलम के लिए रहमत हो, तुम इस आलम के लिए रहमत हो, तुम इस आलम के लिए रहमत हो, तुम इस आलम के लिए रहमत हो। यूं कह लो जितने भी आलम हैं महबूब तुम सबके लिए रहमत हो। इसलिए रहमत वाले महबूब को रहमत की सैर कराई जा रही है। मिसाली है जिसकी पैदाइश ऐसी बेमिसाल हो, तो खुदा की कसम उस महबूब की क्या शान होगी। आज लोग कहते हैं कि मिलाद मनाने की जरूरत क्या है। मिलाद अगर मनाना है तो हजरत आदम की मनाओ, मिलाद मनाना है तो हजरत नूह की मनाओ, हजरत ज़करिया की मनाओ, हजरत ईसा की मनाओ, सहाबा की मनाओ। अगर मिलाद मनाना जरूरी है तो हर नबी की मनाओ, हर रसूल की मनाओ, हर सहाबी की मनाओ। ये क्या बात हुई कि सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की मिलाद मनाते हो, मगर हजरत आदम की नहीं मनाते,
हजरत नूह की नहीं मनाते, हजरत मूसा और हजरत ईसा की नहीं मनाते। बात तो सही है कि हम जब नबी हैं, रसूल हैं, सभी नबी और रसूल हैं, तो सबकी मीलाद मनाना चाहिए। मगर उम्मत तो सिर्फ अपने नबी की मीलाद मना रही है, मीलाद सारी कायनात मना रही है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मना रही है। साहिल सवाल करने वाले बहुत तरह से सवाल करते हैं, मगर उनसे जवाब दे देना कि देखो मीलाद सबकी मनाई जा सकती है, मगर बनाना इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि उनकी विलादत हुई है तो दुनिया के नज़्म से हुई है, दुनिया के नज़्म से हुई है। जिस तरह बच्चे पैदा होते हैं वो भी पैदा हुए, जिस तरह बच्चे जाहिर होते हैं वो भी जाहिर हुए। वो नबी हैं, वो रसूल हैं, वो सहाबी हैं, वो सालिहीन हैं, तो क्या हुआ, उनकी विलादत भी दुनिया के इंसानों की तरह खुदा ने फरमाई। मगर ऐसी विलादत कायनात में दिखाओ कि जैसा खुदा का महबूब पैदा हुआ, ऐसी विलादत किसी की पैदा हुई कि नबी पैदा हुए, तो खुदा ने ये फजीलत अता फरमाई कि खाली एक शहर नहीं, पूरे अरब के अंदर उस साल किसी के घर में बेटी ही पैदा नहीं। क्या बात है। जहाँ जहाँ बच्चे पैदा हुए, खुदा ने अपने महबूब के सदक़े में हर माँ को बेटा अता किया। सुभान अल्लाह। नबी की आमद का यह आलम था कि हमारे आका जिस साल पैदा हुए, अरब में ऐसी खुशहाली थी, ऐसी खुशहाली थी, हर तरफ सब्जा उगा हुआ था, फसलें उगी हुई थी, जानवर खा खा के सेहतमंद हो गए थे, इस कदर अनाज था, दरियों में रवानी थी, हर तरफ नूर ही नूर था। नबी की आमद के सदक़े में अल्लाह ने पूरे अरब को खुशहाल कर दिया। सुभान अल्लाह। हमारे आका की विलादत का आलम ये था कि इंसान तो इंसान, जानवर भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि पैगंबरे आखिर ज़मा तशरीफ ले आए, मुबारक हो कि जिसके सदक़े में हमको ये जिंदगी मिली, वो खुदा ने उस महबूब को दुनिया में भेज दिया है। हमारे आका की शान तो ये आलम था कि हमारे आका पैदा क्या हुए, हमारे आका पैदा हुए तो कसरा के 14 कंगूरे गिर गए, उसके महल के कंगूरे गिर गए। हजरत आमना फरमाती हैं, जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो मेरी निगाहों से खुदा ने हिजाब उठा दिए, शाम के मुल्के शाम के महल मैंने मक्के से बैठे बैठे देखे। सुभान अल्लाह। सुभान इस तरह हमारे आका की विलादत ऐसी बेमिसाल हुई है। रूए जमीन में ऐसी विलादत किसी की हुई हो तो बताओ। जब ऐसी विलादत किसी की नहीं, जब ऐसी पैदाइश किसी की नहीं, तो जो बेमिसाल नबी और रसूल है उसकी बेमिसाल मिलाद भी होना चाहिए। इसीलिए हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि 12 तारीख को ही मनाते हो, हम 12 तारीख को खास तौर पे याद करने के लिए मनाते हैं, वरना अहले सुन्नत वल जमात खुदा की कसम जिंदगी के हर गोशे में नबी की सुभान अल्लाह क्या कहने। हम एक दिन मिलाद की बात नहीं करते, हमारे घर में बच्चा भी होता है तो हम मिलाद मनाते हैं, हमारे घर में कोई खुशी आती है तो हम मिलाद की महफिल रखते हैं, हमारे नए घर और नए मकान बनते हैं तब खुशी में मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, हमें कोई भी नेमत मिले तो हम मुस्तफ़ा की मिलाद इसलिए मनाते हैं, उन्हीं के सदक़े में खुदा ने जिस नबी के सदक़े में मिला है उनकी मिलाद हर खुशी में भी मनाएंगे, हर गम में भी मनाएंगे, क्योंकि जिंदगी भी उन्हीं के सदक़े में है, शहादत भी उन्हीं के सदक़े में है, मौत भी उन्हीं के सदक़े में है। जो कुछ भी खुदा हमको दुनिया में दे रहा है वो भी नबी के सदक़े में दे रहा है, कब्र में भी देगा तो उन्हीं के सदक़े में देगा, और आखिरत में भी नवाजेगा तो उन्हीं के सदक़े में नवाजेगा। कायनात नबी के सदक़े में है। नबी अगर खुश है तो खुदा की कसम हमारी जिंदगी कामयाब है। अगर नबी नाराज हो जाए तो वो बंदा लाख इबादत कर ले, रियादत कर ले, मगर उसको कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्तफ़ा की खुशी में रब की रज़ा है। हम सबको मिलाद मुस्तफ़ा समझने की और दिल की गहराइयों से मिलाद को करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना कि फजूल खर्ची गुनाह है, फजूल खर्ची गुनाह है। दुनिया के कामों पे आप पैसा खर्च करेंगे तो वो उसका आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया। मगर खुदा की कसम यहाँ पर इस बात को समझो, दुनिया के कामों में आप जो पैसा खर्च कर रहे हो उसका एक एक रुपए का जवाब हमको और आपको देना पड़ेगा।
मगर नबी की मोहब्बत में खुदा की कसम अगर जिंदगी भी लुटा दो खुदा तुमको नवाजिशें और सुभान अल्लाह। इसलिए नबी पर जो खर्च करो उनकी मोहब्बतों में घर को सजाओ, फूलों से सजाओ, अपने घर को खुशबुओं से महकाओ। जिस कदर भी खर्च करोगे खुदा तुम पर और फजल करेगा। सुभान अल्लाह। याद रखो हमारे आका की बेमिसाली और शान तो ये है कि नबी की खातिर जो भी कुर्बान कर दो खुदा की कसम खुदा तुमसे राजी हो जाएगा, उसकी बरकतें तुमको हासिल होंगी। हद तो ये है कि मिलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से यहाँ तक जिक्र आया है कि मिलाद मनाने के लिए खाली जलसा ही काफ़ी नहीं। इस बात की अहमियत को समझें कि मिलाद किसे कहते हैं। अगर आप जलसा मना रहे हैं ये भी मिलाद, आप जिक्र घर में रखे हैं जिक्र की महफिल वो भी मिलाद, मिलाद के दिन गरीबों को खैरात कर रहे हैं ये भी मिलाद, गरीबों को नवाज रहे हैं, भूखों को खिला रहे हैं, प्यासों को पानी पिला रहे हैं नबी की मोहब्बत की खातिर, तो ये भी मिलाद। और आगे चलो, हद तो ये है कि मुफस्सिरीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मिलाद रोजा रखने का नाम भी है, गरीबों को भी खिलाने का नाम भी है। हद तो ये है कि मिलाद ये भी है अगर तेरे पास कुछ नहीं, तू कुछ भी नहीं कर सकता, न तेरे पास ताकत है कि रोजा नहीं रख सकता, न तेरे पास दौलत है कि तू खर्च नहीं कर सकता, तो अब तू मिलाद कैसे मनाए। तो फरमाया मायूस ना होना, परेशान ना होना। अगर तू भूखा और प्यासा है, कुछ खिला नहीं सकता, किसी को प्यासे को पानी नहीं पिला सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो इतना कर लेना जिस दिन महफिल मिलाद हो उस दिन पूरा दिन मुस्कुराते रहना, मुस्कुराएगा तो खुदा ये भी तुझे मिलाद। सुभान अल्लाह। क्या कहने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नहीं है हमारे पास दौलत है तभी हम मिलाद मना सकते हैं, दौलत है तभी मिलाद मनाओ, नहीं है तभी मिलाद मनाओ। खुदा ने ताकत दी है नबी की शान में, नबी की मोहब्बत में रोजे रखो। खुद हमारे आका मिलाद मनाते रहे, सारी जिंदगी मिलाद मनाते रहे। सोमवार को पीर के दिन हमारे आका रोजा रखते थे। सुभान अल्लाह। आका की आमद का दिन है, आप पीर के दिन खुद रोजे रखा करते थे, सहाबा किराम भी रोजे रखा करते थे। तो ये रोजे रखना भी मिलाद है। खाली ये नहीं, अहले सुन्नत ये नहीं कहते कि जलसा करोगे तभी मिलाद हो। अरे नबी की आमद की खुशी में गरीबों को खैरात करो। अल्लाह ने दौलत दी है, मोहताजों को खिलाओ पिलाओ। और हद तो ये है, मैंने जैसा बता दिया, अगर तेरे पास कुछ भी नहीं, न तेरे पास दौलत है, न पैसा है, न तेरे पास कोई ताकत है, न तू रोजा रख सकता है, न खिला पिला सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अगर नबी से मोहब्बत करता है तो नबी की मोहब्बत पे खाली मुस्कुरा देना, मुस्कुराना इस नियत से कि मेरा महबूब आया है, उसकी आमद की खुशी में हमारे चेहरे भी जगमगा रहे हैं। हम खुश है कि खुदा ने हम पर एहसान किया। खुदा तेरे मुस्कुराते चेहरे देखकर तुझको नवाज देगा। इस बंदे के पास कुछ नहीं तो क्या हुआ, मेरे महबूब को मैंने भेजा, उस खुशी में ये बंदा मुस्कुरा रहा है, मेरे महबूब की खुशी में मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराना भी हमारा इबादत बन जाएगा, मिलाद मनाना बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। जो बरकतों के रास्ते हैं, याद रखना ये बरकतों के रास्ते हैं। मैंने कहा ना कि दुनिया में हम 1 रुपए भी फजूल खर्च करेंगे तो अल्लाह के वहाँ जवाब देना पड़ेगा। पानी का एक कतरा भी बहेगा उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ये मसला भी समझ लो, ये छोटी सी बात है, हम लोग परवाह नहीं करते। नलों के पानी बह रहे हैं, हम परवाह नहीं करते, कितनी बाल्टी पानी बह जाता है, लाइट जल रही है, फजूल जल रही है, कमरे में कोई नहीं। मगर याद रखना नमक के एक एक दाने का भी, कतरे का भी जवाब देना पड़ेगा। फजूल चीज को बर्बाद करने का अल्लाह के वहाँ जवाब देना पड़ेगा। खुद हमारे पीर और मुर्शिद का आलम ये था, मुझे बचपने से याद है कि कभी अगर किसी कमरे की लाइट फालतू जल्दी देख लेते तो पहले लाइट बंद करते और फिर घर वालों को डांटते। जब कमरे में कोई नहीं है तो इस लाइट का क्यों इस्तेमाल कर रहे। अभी अल्लाह को क्या जवाब देगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा जब तुझे जरूरत नहीं है, बिना जरूरत लाइट इस्तेमाल कर रहा है। नल का पानी बह रहा है, खुद अपने हाथ से मस्जिदों की टोटियां बंद करते,
लोग वजू करके चले जाते हैं नल खोल के, खुद वजू के लिए टूटियां खुली हैं तो उनको बंद करते और देख लेते जिसको तो डांटते। ये पानी बर्बाद कर रहा है, कितने लोग इस पानी को तरस रहे हैं। इस पानी को तो बर्बाद कर रहा है, कितने लोग प्यासे बैठे हैं, तू पानी बर्बाद कर रहा है, अल्लाह को क्या जवाब देगा? बात समझो, एक एक कतरे का हमको जवाब दे रहा है जब लापरवाहियां करते। मगर खुदा के महबूब की मोहब्बत में खुदा की कसम सारी दौलत भी लुटा दो तो तुमके सिर्फ नेकियां ही नेकियां मिलेंगी, क्योंकि नबी की मोहब्बत तो तूने किया है, ये फजूल खर्ची नहीं। इसीलिए लोग अपनी गलियों को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, आमदे मुस्तफ़ा के तराने गाते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, स्टेजों को सजाया जाता है, उलमा की ताज़ीम की जाती है, नाख़्वां लोगों की ताज़ीम की जाती है, क़ारी कुरान की ताज़ीम की जाती है। अब ज़रूरत क्या है? कहा देखो ज़रूरत कुछ नहीं, मगर ये ज़रूरत नहीं, ये तो हमें खुदा को महबूब की मोहब्बत का इश्क ज़ाहिर करना है कि परवरदिगार तूने जो मुझको इतनी कीमती दौलत दी है कि अपने महबूब जैसा नबी हमारा हम गुनाहगारों को अता फरमाया है। इस महबूब की खुशी में अगर हम अपनी जान भी कुर्बान कर दें तो वो भी कम है। ये माल है, ये माल क्या अहमियत रखता है? ज़रूरत पड़ेगी तो नबी पर जान भी कुर्बान कर दें तो वो भी महफिल मिलाद है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करिए अल्लाह ताला से हमारे दीवान साहब के लिए कि जो बरसों पहले महफिल मिलाद को कायम कर गए जगह पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके बच्चों के बच्चे उसको बराबर फॉलो कर रहे हैं।